किस तरह जिहड़ा हैगा मैंस्टुरेशन है, किस तरह उहनूं स्टिगमा एज अ टैबू कंसिडर किया जाता। कुड़ियाँ हैगियां स्पैशली जो स्कूल दे विच असीं गल करिए उन्हां नूं फ्री सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड कराया जाएगा। रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज, मोरोवर रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज़ इतनी है, रीजन वाइज आपको डिस्पैरिटीज़ मिलेंगी। तो उस वजह से जो मेंस्टुरेशन है वो परसीव ऑल टुगेदर डिफरेंट किया जाता है। There are number of taboos, there are number of restriction associated with menstruation. वो मंदिर नहीं जा सकती है, बिल्कुल। या मस्जिद नहीं जा सकती है, रिलीजियस टेक्स्ट नहीं पढ़ सकती है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे कुछ पर्टिकुलर दिन होते हैं, 2 से 3 दिन वो शी कांट टेक हेड बाथ, किचन में नहीं जा सकती, किचन में नहीं जा सकती है, अचार नहीं कर सकती है क्योंकि अचार खराब हो जाएगा। वो नॉर्मली पंजाबी विच कहा जाता है कि कुड़ी जवान हो गई है। हाँ जी। ते कुड़ी जिहड़ी हैगी है बाहर नहीं जा सकती है, मुंडियां नाल गल नहीं कर सकती। पर मैम ये तो चैप्टर स्किप ही कर दिते जाते हैं स्किप ही कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। मतलब एजुकेशन दिती नहीं जाती इस चीज़ बारे, टीचर भी इस चीज़ बारे पता नहीं शेम फील करते हैं, स्किप करवा देते हैं। बच्चे को एकदम से नहीं बता सकते कि मेंस्ट्रुएशन होता है, सेक्सुअल आपके ऑर्गन्स हैं, इनका क्या फंक्शन है। आप उनको स्टेप बाय कैप्सूल की तरह देंगे। अर्बन में थोड़े वोकल कह सकते हैं हम हो गए हैं, लेकिन अभी भी इतने वोकल नहीं हुए कि हम सेक्स एजुकेशन के बारे में रिस्पेक्टिव ऑफ मेल फीमेल हम बात करें। अगर बच्चे को मेरे को बताना है रिप्रोडक्शन उसके बारे में, मेंस्ट्रुएशन के बारे में, तो मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन और क्या लैंग्वेज यूज़ करूँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। हाँ जी। फैमिली में भी, और सेकेंड मीडियम रहता है आपका स्कूल। 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ गवर्नमेंट ने सैनिटरी पैड्स ਤੋਂ जीएसटी हटाता, 12% जीएसटी। इंटाइटल्ड हैं इस चीज़ के लिए, या आपको चैरिटी की तरह दिया जा रहा है कि बजट है हमारे पास तो आपको मिल जाएगा, अगर बजट नहीं है तो नहीं मिलेगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਸਿੱਧੂ। ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਮਨਸ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂਸਟਰਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿਚਾ ਵਾਲੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू सो मच जी। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਿਚਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੇਅਰ ਬਾਏ ਲੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਸਟੁਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਿਗਮਾ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਬੂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੰਡਰਫੁਲ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸੈਨੀਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਡ एज अ दैट इट विल बी योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट है, राइट। तो बहुत ही बढ़िया फैसला आया आई थिंक ये। तो मैं लेयर बाय लेयर बात करूँगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेंस्ट्रुएशन जो है, मेंस्ट्रुएशन को कैसे परसीव किया जाता है ग्लोबली, और अगर हम बात करें इंडियन कंटेक्स्ट में।
तो ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो इसको एक बायोलॉजिकल फिनोमिना कंसिडर किया जाता है कि नॉर्मल सा बायोलॉजिकल फिनोमिना है जिसमें लड़कियां जब है एडोलेसेंट एज में आ जाती हैं तो 7 to 8 days या 6 to 7 days वो मेंस्ट्रुएट करती हैं और जो जो भी चीज़ें उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, राइट। लेकिन अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में इसकी बात करते हैं, इंडियन कंटेक्स्ट में भी वेरिएशन है। आप देखेंगे रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज, मोरोवर रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज़ इतनी है, रीजन वाइज आपको डिस्पैरिटीज़ मिलेंगी। तो उस वजह से जो मेंस्ट्रुएशन है वो परसीव ऑल टुगेदर डिफरेंट किया जाता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ विल टॉक अबाउट इंडिया। तो इंडियन कंटेक्स्ट में मेंस्ट्रुएशन को परसीव कैसे किया जाता है, तो अगेन मैं इसमें 3 लेयर्स में इसको डिवाइड करूँगी। जो फर्स्ट लेयर है वो बात करते हैं हम, कुछ टैबूज़ और रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जब हम मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में। तो देर आर नंबर ऑफ टैबूज, देर आर नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुएशन। फॉर इंस्टांस अगर मैं आपको छोटी छोटी जो मेरे जहन में है मैं वो आपसे शेयर करूँगी, जैसे कि लड़की है या औरत है वो मंदिर नहीं जा सकती है, बिल्कुल। या मस्जिद नहीं जा सकती है, रिलीजियस टेक्स्ट नहीं पढ़ सकती है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे कुछ पर्टिकुलर दिन होते हैं, 2 से 3 दिन वो शी कांट टेक हेड बाथ, किचन में नहीं जा सकती, किचन में नहीं जा सकती है, अचार नहीं कर सकती है क्योंकि अचार ख़राब हो जाएगा। अब अगेन जब हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हमें बड़ा absurd लगता है कि किस तरह की चीज़ें हैं जिस पर रिस्ट्रिक्शंस है, बट इसके साथ रिलीजियस कॉनोटेशंस जुड़ी हुई हैं बहुत सारी। रिलीजियस टेक्स्ट में बहुत सारा विवरण किया गया है इसके बारे में, बहुत डिटेल में बताया गया है कि मेंस्ट्रुएशन को इम्प्योर कंसिडर किया जाता है, राइट। अगर मैं रिलीजियस टेक्स्ट की बात करूं तो उसमें एक स्टेटमेंट है और दी गई है स्टेटमेंट कि एनीथिंग विच इज़ एक्सक्रीटिंग आउटसाइड फ्रॉम आवर बॉडी इट इज कंसिडर्ड एज फिल्दी, इट इज़ कंसिडर्ड एज इम्प्योर थिंग। सो एज आपको जैसे पता ही है कि मेंस्ट्रुएशन में वी आर एक्सक्रीटिंग ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज इम्प्योर थिंग। तो जिसकी वजह से उनको टेम्पल नहीं जाने दिया जाता। अब्सर्ड है बट लेकिन रिलीजियस कॉनोटेशंस है जिसकी वजह से लोग फिर उनको स्टीरियोटाइपिंग लगा लीजिए या ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं वन बाय वन। दूसरा इसके साथ रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। रिस्ट्रिक्शन एज इन जब आप एक लड़की एडोलेसेंट एज में एंटर करती है, अगर मैं पंजाबी के कुछ वर्ड यूज़ करूँ तो नॉर्मली पंजाबी विच किया जाता है कि कुड़ी जवान हो गई है। हाँ जी। ते कुड़ी जड़ी हैगी है बाहर नहीं जा सकती है, मुंडिया नाल गल नहीं कर सकती है। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ भी देयर रीजंस आर देयर, सोसाइटल लगा लीजिए आप, कल्चरल रीज़न लगा लीजिए। सो इंडियन जो फिनोमिना है वहाँ पर सिर्फ ये बायोलॉजिकल फिनोमिना नहीं है कि सोशो कल्चरल रिलीजियस फिनोमिना है, जिसमें हम ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि जब लड़की है उसकी सेक्सुअलिटी को किस तरह से कंट्रोल करना है, क्योंकि सेक्सुअल प्योरिटी जो हमारी इंडियन उसमें अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो वो बहुत बड़ी चीज़ कंसिडर किया जाता है। इफ़ शी इज़ सेक्सुअली इम्प्योर तो उसको सोसाइटी वाले या फिर जो कम्युनिटी मेंबर है उसको ठीक तरीके से नहीं देखते हैं, रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो इस सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कुछ टैबूज़, कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाती हैं। जैसे मैंने बात करी उनकी मोबिलिटी पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, लड़कों से बात नहीं कर सकती हैं, इस तरह के कपड़े नहीं डाल सकती है, वो नहीं कर सकती है, ये नहीं कर सकती है, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट। उसके बाद जैसे मैंने आपको बात किया लैंग्वेज क्या यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गल है, बड़ी गल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैगा कि किस तरह की लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाबी में जब हम बात करते हैं कि लड़की बड़ी हो गई है, इस तरह की सोशलाइजेशन दी जाती है। मीडियम क्या होता है देखिए बात करने का, जब आपको कोई मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताएगा, नॉर्मली इंडिया में कोई मेल मेंबर तो नहीं बताता, बात नहीं होती, जो है वो फीमेल मेंबर बता रही है। फीमेल में भी मिस इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको। क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर मैं खुद का भी अपना एक्सपीरियंस या मेरे फ्रेंड्स सर्कल है, मेरे कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके साथ मेरी बातचीत होती है इस टॉपिक के बारे में, तो सबका यही कहना होता है कि हमें बहुत लिमिटेड सी इन्फॉर्मेशन दी गई थी। अगेन उसके पीछे भी देर आर नंबर ऑफ रीजंस। जब हम बात करते हैं कि स्टिग्मा है, शेम है, जब सेक्स एजुकेशन की बात होती है तो सेक्स एजुकेशन को लेकर अभी भी अर्बन में थोड़े वोकल कह सकते हैं हम हो गए हैं, लेकिन अभी भी इतने वोकल नहीं हुए कि हम सेक्स एजुकेशन के बारे में
रिस्पेक्टिव ऑफ मेल फीमेल हम बात करें, मेल की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है, लाइकवाइज फीमेल की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनके बारे में वो बात नहीं करते हैं। तो रिप्रोडक्शन के बारे में हमारे पेरेंट्स हमको बहुत ही लिमिटेड से इन्फॉर्मेशन देते हैं, राइट। तो उस इन्फॉर्मेशन की वजह से वो मिस इन्फॉर्मेशन ही मिलती है हमें, काइंड ऑफ मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो दी जाएगी कि सैनिटरी नैपकिन यूज़ कैसे करना है आपको, क्योंकि उसके साथ रिप्रोडक्शन का एक टॉपिक जोड़ा गया है। जब हम कहते हैं कि मेंस्ट्रुएशन की बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, अगर बच्चे को मेरे को बताना है रिप्रोडक्शन उसके बारे में, मेंस्ट्रुएशन के बारे में, तो मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन और क्या लैंग्वेज यूज़ करूँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है फैमिली में भी। और सेकेंड मीडियम रहता है आपका स्कूल। हम नॉर्मली यही सोचा जाता है, हमारे माइंड में एक यही थिंकिंग होती है कि जो स्कूल है वो एक मीडियम है जो इस तरह की इंफॉर्मेशन, सेक्स से रिलेटेड कह लीजिए, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कह लीजिए, कि ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, राइट। लेकिन स्कूल में भी आप सभी फेमिलियर हैं, हमारे टाइम में भी क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और मैंने एक छोटा सा इस पर अपना एक रिसर्च आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरह से, मैंने कुछ लड़कियों को इंटरव्यू किया कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन, लड़कों को इंटरव्यू किया कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड दी जाती है, या रिप्रोडक्टिव चीज़ों के बारे में, या फिर सेक्स एजुकेशन जो है वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता गया है। तो पहली बात तो हमारी जो टेक्स्ट बुक हैं, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, वहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो 6th या 7th पे इंट्रोड्यूस कराई जा रही है आपको सेक्स एजुकेशन। उससे पहले उसका ABC कुछ भी आपको डिस्कस नहीं करता। एकदम से आप बम्बार्डमेंट नहीं कर सकते ना, बच्चे को एकदम से नहीं बता सकते कि मेंस्ट्रुएशन होता है, सेक्सुअल आपके ऑर्गन्स हैं, इनका क्या फंक्शन है। आप उनको स्टेप बाय स्टेप कैप्सूल की तरह देंगे, और वो कैप्सूल हमें इम्पॉर्टेंट है कि वो कैप्सूल्स हमें बचपन से दी जाएं। बहुत ही छोटी सी बात है कि जैसे हम बुक्स को उठाते हैं, जब मैं पुरानी, जैसे छोटे बच्चों की बुक्स है, फर्स्ट क्लास के, नर्सरी क्लास के, तो वहाँ पर जब मैं बुक्स देखती हूँ तो मैं मुझे थोड़ा absurd लगती है ये चीज़ें, कि वो जो बुक है उसमें आपके जेनिटल्स के बारे में बात ही नहीं की जा रही है। इट इज़ नॉट रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बॉडी, राइट। तो इन चीज़ों के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप पर मैम ਇਹ ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸਕਿਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल सही बोल रहे हो, मतलब एजुकेशन ਦਿੱਤੀ नहीं जाती इस चीज़ बारे, टीचर भी इस चीज़ बारे पता नहीं शेम फील करते हैं, स्किप करवा देते हैं। उसका भी रीज़न है ना, टीचर भी हमारे जैसे हैं, सेम सोशो कल्चरल सेटिंग से आए हैं, सेम माइंडसेट है, सेम सोशलाइजेशन हुई है, उनके लिए सही लैंग्वेज नहीं है। अब वो किस तरह की लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ करेंगे, वो लैंग्वेज में अगर वो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, सब तरह के मीडियम के बच्चे हैं, पंजाबी में भी है, तो वर्ड्स क्या यूज़ किए जाएं ताकि वो इन्फॉर्मेशन एक सेंसिबल तरीके से बच्चों को दी जाए, राइट। तो वो अगर वो उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हंसी मजाक शुरू हो जाता है, दे स्टार्ट गिगलिंग कि अरे ये कैसी बात कर रहे हैं, या लड़का कोई उठेगा या लड़की कोई उठेगी, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेंगे कि वो टीचर खुद एम्बैरेस्ड फील करता है। सो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि एक तो जो मैंने आपसे पहले भी बात करी कि हमारी सोसाइटी इस तरह की है जिसमें सेक्स एजुकेशन के ऊपर, मेंस्ट्रुएशन के ऊपर, रिप्रोडक्शन के ऊपर बात नहीं की जाती है। अगर बात की जाती है तो वो बहुत मिस इन्फॉर्मेशन या आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। सो इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं, जो कि हम डिस्कशन का मुद्दा है जो हमारा आज, वो ये है कि ये फंडामेंटल राइट होना चाहिए था, जिसका हमें बहुत अभी लेट जाके ये जजमेंट आई है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि ये जजमेंट आई, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि इसमें जो डायरेक्टिव्स हैं वो सब फॉलो किए जाएंगे, बिकॉज लीगल इम्प्लीकेशन होंगे अगर उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। सो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦੀ। 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਸ ਤੋਂ GST ਹਟਾਤਾ, 12% GST, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਸ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਸਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ
ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੋल्यूशन ਕੀ है, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? देखिए जैसे कि अब जजमेंट जो हुई है ये बहुत ही जिसमें डायरेक्टिव्स जो आए हैं, डायरेक्टिव्स में बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है कि जो सैनिटरी नैपकिन है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्रोवाइड पहले नहीं कराए जाते थे, बहुत सारी स्कीम्स हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और स्टेट स्पॉन्सर्ड जहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं आप ये कहिएगा कि एंटाइटलमेंट में फ़र्क होता है। अब एंटाइटल्ड है इस चीज़ के लिए या आपको चैरिटी की तरह दिया जा रहा है कि बजट है हमारे पास तो आपको मिल जाएगा, अगर बजट नहीं है तो नहीं मिलेगा। बट नाउ इट इज़ योर फंडामेंटल राइट। अगर आपको सैनिटरी नैपकिन नहीं मिल रहे हैं या स्कूल नहीं प्रोवाइड करा रहा है तो ये आपका फंडामेंटल राइट है, अधिकार है आपका, जिसके बारे में आप बोल सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने बोला भी है कि अगर स्कूल प्रोवाइड नहीं कराएगा और ऑडिट्स में इस तरह की कुछ प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट होती है तो डेफिनेटली उस स्कूल को ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लिए जाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सैनिटरी नैपकिन, आप तो सैनिटरी नैपकिन की बात कर रहे हैं, अभी भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं स्पेशली अगर मैं इंटीरियर विलेजेस की बात करूं जहां पर अभी भी सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना बहुत बड़ी बात है। राइट, उसके लिए भी देखिए आप जाएंगे सैनिटरी नैपकिन किसके से मांगेंगे आप? मेल से, क्योंकि ये शेम वाली चीज़ है। तो आप जाके मेल को बताइए, बोल ही नहीं सकते कि भैया मुझे सैनिटरी नैपकिन दे दीजिए। राइट, मे बी आप अपना टाइम हम भी अगर याद करें, उस टाइम अब तो बहुत हम वोकल हो चुके हैं इन चीज़ों के बारे में। हमारे टाइम में हमें खुद शर्म आती थी बिकॉज हमें भी इस तरह से सोशलाइज़ किया गया था कि नहीं इसके बारे में बात नहीं करना है, ये ऐसे टॉपिक है जिनके बारे में ओपनली बात नहीं की जाती है। मैम ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਈ ਨੀਡ ਦਿਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਟੋਟਲੀ ਰਾਈਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗੀ ਐਂਡ ऑल थिंग। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਹੀ तरीके ਨਾਲ पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे। कह रही हूँ देखिए स्कीम्स हैं, ऐसा नहीं कि स्कीम्स अवेलेबल नहीं है, बट फिर वही प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, वो मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं बच्चों को। ये तो आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, वहाँ पे आपको सैनिटरी पैड्स जो हैं बहुत ही मिनिमल अमाउंट में मिलते हैं। लेकिन वही मैं बात कर रही हूँ ना कि एक तो यूज़ नहीं करना है, और अगर यूज़ करना है तो बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो अभी भी रूरल सेटिंग में विलेजेस में यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे कि हम अगर बात करें कि क्लोथ्स या रीयूजेबल क्लोथ्स को दोबारा से उनको धोकर फिर उनको आप सन में भी नहीं कर सकते क्योंकि शेम वाला कंसेप्ट आ जाता है, तो आप उनको ड्राई अगर कर रहे हो तो घर के शेड में ही कर रहे हैं तो इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन मतलब इट्स अ साइकिल, राइट, इट इज़ अ साइकिल कि आप एक साइकिल से दूसरे साइकिल में निकलते जा रहे हैं, फंसते ही जा रहे हैं, राइट। तो जब तक ये कंसेप्ट, शेम का कंसेप्ट जो है, हम इस चीज़ को नहीं हटाएंगे, मुझे लगता है कि चीज़ों का बदलना बहुत मुश्किल है। ऑफ कोर्स चेंज विल कम, चेंज इज़ कमिंग। अर्बन सेटिंग में, रूरल सेटिंग में भी अब लोग काफ़ी वोकल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है राइट टाइम पर हमें नहीं मिल रही। उतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। मैम तुसी बहुत लंबा टाइम ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਂਦਾ? ਲਾਈਕ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ, लड़कियों की बात करूँ, तो दे आर वेरी हैप्पी। अगर कोई है हमसे पूछने वाला, हमसे कोई बात करने वाला है जिससे हम कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड, तो वो बहुत रिलक्टेंट नहीं होंगे, वो बात करते हैं ओपनली। लेकिन अगर मैं बॉयज़ की बात करूं तो वहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट है इस टॉपिक के बारे में उनसे बात करना। ऑफकोर्स सेंसिटाइज होते हैं कुछ बच्चे, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कंपेयर करूं तो फीमेल्स थोड़ा शाई नहीं फील करती हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करती हैं। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, एक केस स्टडी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो मैंने एक लड़की से बात किया कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, मेंस्ट्रुएशनल एक्सपीरियंस, क्या कैसा लगा, ट्रॉमा, ये सब चीज़ें 4-5 मैंने उसको ऑप्शंस दिए एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। मैंने कहा राजे क्या हुआ, बात बताइए आप। तो वो बताती है कि किस ट्रॉमा से वो गुजरी है, क्योंकि अगर आप
आपने में भी अपने सर्कल में देखा होगा कि अगर स्टेनिंग हो गई तो उसको कितना एम्बैरेसमेंट माना जाता है, राइट? तो उस लड़की का क्या हुआ कि शी स्टेन्ड हर क्लोथ्स, और ये सब बॉयज़ ने देख लिया, लड़कियों ने देख लिया, एंड दे मेड रिडिक्यूल ऑफ इट, उनको पूरा मजाक बनाया गया, पूरा मॉक किया गया उस लड़की को। और उस एम्बैरेसमेंट से, उस ट्रॉमा से निकलने की वजह से उसने घर गई और उसने घर जाकर बोला कि मम्मी मैं आज से स्कूल नहीं जाऊंगी। सो उसने 1 साल स्कूल ड्रॉप करके रखा और इस ट्रॉमा से वो गुजरी लड़की। तो छोटी सी चीज़ है कि हम मेंस्ट्रुएशन को बोल देते हैं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बायोलॉजिकल इशू है या सोशल इशू है या व्हाटएवर जो भी हमारी कॉनोटेशंस उसके साथ होती हैं, लेकिन ये छोटी सी चीज़, ये छोटा सा इंसिडेंट उस लड़की का 1 साल आप ये देखिए खराब हो गया, राइट? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि विद टाइम चेंजेस आएंगे, और जब तक हम इसके बारे में वोकल नहीं होंगे तब तक चेंजेस आना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। एंड ये जो जजमेंट आई है, लैंडमार्क जजमेंट मैं कहूँगी इसको, और इसकी वजह से आई थिंक बिकॉज उसमें जो डायरेक्टिव्स हैं उसमें ये भी मैंडेट किया गया है कि स्कूल्स जो हैं वो जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें फैसिलिटीज़ भी हों, राइट? क्योंकि क्या होता है कि आपके पास टॉयलेट नहीं है, पहली बात तो टॉयलेट हैं तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं हैं, राइट? तो अगर किसी को डिस्पोज करना है, चेंज करना है, वही डिग्निटी वाली बात जो हम कह रहे हैं ना कि आर्टिकल 21A जो बात करते हैं कि इट्स अ मैटर ऑफ डिग्निटी, तो वो डिग्निटी हमारी तभी बनेगी जब हमें एज अ कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इंक्लूड किया गया, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन अब वोकली इसके बारे में बात करेगा। तो आई एम होपिंग कि बहुत सारे चेंजेस इस लैंडमार्क जजमेंट के साथ आएंगे। मोरओवर सेंसिटाइजेशन की वहाँ पे बात की गई है कि सिर्फ फीमेल की सेंसिटाइजेशन नहीं, टीचर्स की सेंसिटाइजेशन और मेल की सेंसिटाइजेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जी मैम, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਵਿਮਨਸ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? राइट, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, आप जैसे मैंने कहा कि आप बम्बार्डमेंट नहीं कर सकते हो एकदम से उसको सेक्स एजुकेशन नहीं दे सकते हो एक एज में आकर। फॉर इंस्टेंस अगर आप बात करें कि 12 साल का बच्चा है, 11 ईयर्स की लड़की है या लड़का है, उसको मैं सेक्स इन्फॉर्मेशन जो है 1 गो में दूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक जो मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, रिगार्डिंग सोशियोलॉजी, रिगार्डिंग जेंडर एंड रिगार्डिंग सेक्स एजुकेशन, बीइंग अ मदर, आई फील ये बहुत छोटे एज से स्टार्ट हो जाना चाहिए। बट लैंग्वेज और क्या चीज़ आपको बच्चे को इस एज में बताना है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चे के लिए। फॉर इंस्टेंस मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, जो कि हम पहले डिस्कस भी कर रहे थे इस चीज़ के बारे में ऑफ द कैमरा, कि जो बुक्स हैं वहाँ पर जो मेल और फीमेल जेनिटल्स की जब हम बात करते हैं वो ओपनली अभी भी नहीं दिखाए जाते हैं, राइट? उनको हाइड कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ अगेन द सेम थिंग कि सेक्स से रिलेटेड है, या हमें इसके साथ कि इन्फॉर्मेशन में भी बच्चे को प्रोवाइड करानी पड़ेगी, या इस तरह के क्वेश्चन वो पूछेगा कि अरे अगर ये चीज़ है। बट एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम मेल या फीमेल जेनिटल दिखा रहे हैं तो हम बच्चे को उसका डेफिनेटली, बच्चा एक है, क्यूरियस माइंड है, वो क्वेश्चन पूछेगा। तो आप इतनी इन्फॉर्मेशन तो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये जो है यूरिनेट के काम आता है, दैट्स इट। वो आप इनिशियल एज में आप उस पर आइए, उसके बाद द कंसेप्ट जो कंसेंट का है, इन्फॉर्मेशन है, बैड टच, गुड टच, ये हमें बहुत ही टेंडर एज में बच्चों को बताना पड़ेगा, तभी उनको, बस इतने सारे इंसिडेंट हो रहे हैं बहुत सारे, जिसमें अब्यूजेस हैं मेल फीमेल दोनों के लिए। अब ऐसा नहीं है कि फीमेल के ही अब्यूजेस हैं, मेल के अब्यूजेस भी इक्वली आपको न्यूज़ में, आप तो उसमें हैं, रिपोर्टिंग में हैं, आप इंसिडेंसेस देखते हैं। तो अगर हमें इस तरह की चीज़ों से बच्चों को बताना है तो हमें इन्फॉर्मेशन राइट एज में उनको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग उसको छोटी छोटी कैप्सूल्स, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन स्टोरीज़ के थ्रू
किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में मे बी कुछ यूट्यूब चैनल इस इनिशिएटिव लें, कोई एनजीओ इनिशिएटिव ले जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन, एंड मोर ओवर आई थिंक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस तरह की इनिशिएटिव ले और वो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है सेक्स से रिलेटेड, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, टाइम एज में कि किस तरह का करिकुलम होना चाहिए इस चीज़ों को लेकर, तो वो मुझे लगता है टाइम बाय टाइम बच्चों को प्रोवाइड करानी चाहिए। जी मैम, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਲਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਚੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਸ ਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਕरेक्ट ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਥਾਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਰਲਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਮ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰਨ, ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। डेफिनेटली जी। देखिए, मैनू लगता है कि ना ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई थिंक ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैगी है साडी बीइंग अ पेरेंट। साडी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हैगी है कि असी जिहड़ी इन्फॉर्मेशन हैगी है बच्चे नूं एक सही टाइम ते सही लैंग्वेज के थ्रू प्रोवाइड कराइए, राइट। एंड एज पर माई अंडरस्टैंडिंग मेल और द फादर ही कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। कि यही इन्फॉर्मेशन मेल और फीमेल जो मदर और फादर हैं दोनों बैठकर अगर अपने बच्चे को शुरू से बचपन से सिखाएंगे, इट इज़ अ नॉर्मल थिंग एंड नो मैटर व्हाट आई विल बी देयर फॉर यू, राइट। क्योंकि बहुत सारे इसकी प्रॉब्लम इसके साथ साथ एसोसिएटेड हैं, राइट। सेक्स एजुकेशन के बारे में हाफ इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी डेंजरस, राइट। लाइकवाइज मैं डिजिटल लिटरेसी की भी बात करती हूँ, इस तरह की इन्फॉर्मेशन, हाफ इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन बहुत डेंजरस हो जाती है एंड उसके कंसिक्वेंसेस फिर मेंटल वेलबींग पर, उसके कंसिक्वेंसेस आप या सुसाइड केसेस आपने सुने हैं, देखे हैं, तो वो होते हैं। तो आई थिंक ये एक फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन कम्युनिटी मेंबर एंड मोर ओवर सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरऑल ही चेंज आ सकता है। सिंगल इंडिविजुअल मे बी फैमिली लेवल पर कुछ चेंजेस ला सकता है, बट अगर आपको कम्युनिटी लेवल पर चेंजेस देखने हैं तो आई थिंक ये सबको मिलकर इस चीज़ को, जो कंसेप्ट है, जो ये शेमिंग के साथ एसोसिएट किया जाता है कि इसके साथ एक शेम जुड़ी हुई है, इसके बारे में बात नहीं किया जा सकता, ओपनली जब हम बातें करेंगे, आज की जनरेशन है वो बातें कर रही हैं ओपनली, यू नो, दे आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, दे आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। बट मुझे लगता है कि पेरेंट्स और कम्युनिटी मेंबर और जो स्टेट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है एंड उसी की एक एफर्ट लगाकर इस तरह के जो चेंजेस हैं वो हम सोसाइटी में ला सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, तुसी टाइम दिता ते विस्तार नाल सो गलबात मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच, इट्स माय जी। प्लेजर। थैंक यू। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਰਿਚਾ ਵਾਲੀਆ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੱਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ GST ਸੈਂਟਰੀ ਪੈਟਸ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤੇ 21A ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼।